Guys, welcome to Pen Dentistry. Hope you are doing good. I am Dr. Aishwarya with you for easy learning and better understanding. If you haven't subscribed to my channel yet, please go and subscribe to my channel and learn the dentistry in an easy manner. Today our topic is on factors of prognosis of periodontal disease. How you are going to recognize the periodontal diseases prognosis. Okay. So there are four types of prognosis we see in the periodontal diseases. The first one is overall clinical factors. Overall means the whole thing you are going to see. The whole clinical factor you are going to see. Systemic environmental disease. Systemic means there is a presence of disease, that will be the environmental factor. Local factors, the simple local factors that will be involving in the periodontal disease. And the last one is prosthetic restoration factor. Prosthetic restoration factor is that you have done a restoration or prosthesis, that is you have added a teeth or you have done a prosthesis of the teeth, that is new teeth or new cap crown has added in the uh, mouth, and because of that the periodontal diseases is occurring. So this is the factors of prognosis of the, how we are going to determine the whether the good prognosis is there or the prognosis is not good. Okay, the types of prognosis I have given you this lecture in my previous video. It covers whole of the prognosis types. So now we are going to cover the factors. The first one which we are going to see, the overall prognosis factor. These factors will going to affect the prognosis of the periodontal disease. The first one is patient age. If a periodontal disease is occurring at the age of young, if the patient is young, at that time the prognosis of the periodontal disease is not good. Okay, why it is not good? Because at the young age the periodontal disease, the destruction of the gingiva and the pocket formation is taking place. That's why at the young age, if the patient teeth has affected, the gingiva is damaged or destruction is taking place, that means the mouth is, the oral cavity is unhealthy. Okay, so that's why it is not good prognosis. अगर पेशेंट का एज बहुत कम है और उसको पेरिडोनटल डिजीज हो जा रही है तो ये अच्छी बात नहीं है. इतने कम एज में पेरिडोनटल डिजीज होना, डिस्ट्रक्शन ऑफ दी, पूरा डिस्ट्रक्ट जो हो जा रहा है गम्स, वो होना बहुत अच्छा नहीं है. तो इधर प्रोग्नोसिस गुड नहीं आएगी. ठीक है. पॉकेट डेप्थ, द सेकेंड फैक्टर इज पॉकेट डेप्थ. इफ द पॉकेट इज अकरिंग at the young age, same, and there is a bone loss taking place, so that is a bad prognosis. इसका मतलब है कि अगर पॉकेट फॉर्मेशन हो जा रहा है बहुत यंग एज में और सीवियर अटैचमेंट, जो अटैचमेंट है वो लॉस हो जा रही है. पॉकेट डेप्थ मतलब क्या? अटैचमेंट जो होती है गम्स की टीथ के साथ, ये अगर टूथ है हमारा तो ये जो सल्कस, ये सल्कस है जिंजाइवा, ठीक है, ये यहाँ पर पॉकेट फॉर्मेशन, जो अटैचमेंट ये डिटैच हो जा रहा है इससे, तो इसकी प्रोग्नोसिस बैड आएगी क्योंकि ये बहुत यंग एज में हो जा रहा है. डिग्री ऑफ बोन लॉस, when there is a loss of the bone taking place, that determines the level of the loss. Okay, the height, here bone loss is considered in height. I have given you the video of the bone loss, you can go and watch that. यहाँ पर जब बोन लॉस हो जाएगा और उसकी हाइट बोन की डिक्रीज हो जाएगी तो ये प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं है पेरिडोनटल डिजीज के लिए. लेवल ऑफ अटैचमेंट, कितना जिंजाइवा अटैच है, कितना अटैचमेंट हुआ है, ये भी हम, ये एक फैक्टर है पेरिडोनटल डिजीज का. टाइप ऑफ बोन डिफेक्ट, this type of bone defect I have also given this video in my previous lecture, so you can go and watch that. तो कितना बोन डिफेक्ट हुआ है, कौन से टाइप का बोन डिफेक्ट है, ये भी फैक्टर देखा जाता है प्रोग्नोसिस में. पेशेंट कंप्लेन एंड कोऑपरेशन,
पेशेंट कितना कंप्लेन कर रहा है ट्रीटमेंट के दौरान और कितना कोऑपरेट कर रहा है। अगर आपको वो बार बार पोक कर रहा है या हिंडर कर रहा है तो इसका मतलब है कि जो प्रोग्नोसिस है वो अच्छी नहीं है, पेशेंट कोऑपरेटिव नहीं है। अगर पेशेंट बहुत कोऑपरेटिव है तो उसका प्रोग्नोसिस गुड आएगा। सेकेंड सिस्टम ये है कि इन्वायरमेंटल और सिस्टमिक डिजीज। अगर पेशेंट स्मोक कर रहा है, इफ अ पेशेंट इज स्मोकिंग एट दैट टाइम, ये बहुत रिस्क फैक्टर होता है। इसके वजह से जो पेरिनेटल डिजीज है वो क्योर नहीं हो पाती, हीलिंग नहीं हो पाती। हीलिंग में एक ऑब्स्ट्रक्शन आता है, जैसे हिंड्रेंस आता है, रोक देता है हीलिंग स्मोकिंग की वजह से। तो यहाँ पर जो प्रोग्नोसिस है वो मॉडरेट हो जाती है, ओके, दैट इज कम हो जाती है, सो बैड हो जाती है, बैड या आप बोल सकते हैं कम हो जाती है। ये आगे का फैक्टर है स्ट्रेस, ओके। स्ट्रेस के वजह से अगर पेशेंट ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है और उसको पेरिनेटल डिजीज है तो हीलिंग पावर यहाँ पे कम हो जाएगी, ओके, स्ट्रेस के वजह से। इसकी वजह से जो प्रोग्नोसिस बनेगी वो पुअर बन जाएगी क्योंकि हीलिंग नहीं हो पा रही है और पेरिनेटल डिजीज बढ़ते ही जा रहा है। जेनेटिक फैक्टर ये होता है कि जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म होता है इसमें। जेनेटिक फैक्टर की वजह से पेरिनेटल डिजीज का जो प्रोग्नोसिस है वो सीवियर हो जाता है, इसको रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि ये जेनेटिक फैक्टर होता है और ये इसको आप बहुत कम चांसेस होते हैं रोकने के। इसलिए सिस्टमिक डिजीज, अगर पेशेंट को कोई सिस्टमिक डिजीज ऑलरेडी है तो यहाँ पर भी आप प्रोग्नोसिस डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और जो भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो रिस्पॉन्ड कर रही है, ओके, और रिस्पॉन्ड कर रही है दैट मीन्स पेरिनेटल डिजीज कम हो रहा है और सिस्टमिक डिजीज भी कम हो रही है, ओके। तो यहाँ पर प्रोग्नोसिस गुड हो जाएगा। अगर सिस्टमिक डिजीज की वजह से पेरिनेटल डिजीज आपकी बढ़ती जा रही है तो प्रोग्नोसिस यहाँ पर गुड नहीं होगा, पुअर हो जाएगा। लोकल फैक्टर्स क्या है? प्लेग एंड कैलकुलस। कितना प्लेग, अगर प्लेग का डिग्री आप देख रहे हैं, ये मैंने अपने वीडियो में पहले वीडियो में दिया हुआ है कैलकुलस और प्लेग का इंडेक्स, तो आप लोग वो जाके देख सकते हैं कितना डिग्री ऑफ कैलकुलस और प्लेग वहाँ पर एक्यूमुलेट हुआ है, जमा हुआ है। वो डिटरमाइन करेगा कि प्रोग्नोसिस गुड है, बैड है, फेयर है, कौन सी प्रोग्नोसिस है, ओके। एनाटॉमिक फैक्टर, यहाँ पर ये दिखाता है कि जो एनाटमी है, लार्ज क्राउन है कि इनामल पर्ल बना हुआ है, वहाँ पर बाइफर्केशन है या रूट रिजॉर्प्शन है, कॉन्कैविटी है या कैसा टूथ का एनाटमी है, वो फैक्टर डिटरमाइन करेगा प्रोग्नोसिस। सब जिंजाइवल रिस्टोरेशन, सब जिंजाइवल रिस्टोरेशन अगर कर दिया गया है तो उसके नीचे प्लेग अक्यूमुलेशन होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर जाके फूड लॉजमेंट होगा, उसकी वजह से प्लेग बनेगा सब जिंजाइवल रिस्टोरेशन के लिए। तो यहाँ पर बोन लॉस होने के चांसेस बहुत होते हैं क्योंकि जो एक्यूमुलेशन होता है उसकी वजह से पेरिनेटल डिजीज ज़्यादा होती हैं, केरीज होगी, बोन लॉस होगा, तो यहाँ पर प्रोग्नोसिस गुड नहीं होता। टूथ मोबिलिटी, तो जब मोबाइल है ये पुअर प्रोग्नोसिस होती है क्योंकि यहाँ पर बोन लॉस हो जाता है, इसीलिए टूथ मोबाइल होता है। इन्फ्लेमेशन हो जाएगा और पेरिनेटल लिगामेंट्स यहाँ पे डैमेज हो जाएंगे और ट्रॉमा हो जाएगा ऑक्लूजन से, तो भी टूथ मोबिलिटी दिखेगी, तो ये प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं है। लास्ट वन है प्रोस्थेटिक्स एंड रिस्टोरेटिव फैक्टर्स। ये ओवरऑल प्रोग्नोसिस हम लोग यहाँ पे देखते हैं लेवल ऑफ अटैचमेंट है या नहीं है, ये देखा जाता है। यहाँ पर केरीज देखी जाती है कि अगर केरीज लगा हुआ है तो उसको आप कैसे रिस्टोर करेंगे या फिर उसको एंडोडोंटिक रेफर करेंगे, दैट इज आरसीटी, या जो भी करेंगे आप इसमें रिस्टोर करेंगे या आरसीटी करेंगे, ये प्रोग्नोसिस दिखाता है। ये भी एक फैक्टर है, ओके, रिस्टोरेशन या उसका प्रोस्थेटिक्स कैसा है। सो ये पूरा ये मैंने वीडियो हिंदी में दिया है,
आप कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में, तो मैं फर्दर वही वीडियो बनाऊंगी उसी लैंग्वेज में। तो ये फैक्टर्स हैं पेरिडोनटल डिजीज के। So if you like the video, please like, subscribe and comment. Keep watching Pendentistry and share this video to your friends and your batchmates for easy learning and better understanding. सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।